थैंक यू नदीम। मैं आग्रह करूंगा, आई रिक्वेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स, कॉमरेड्स, fellow parliamentarians and others to mute their audio for some time, and we'll follow the same pattern subsequently. Okay. Thank you very much to all of you. I think this is a series of things we are doing in last couple of days. I'll just put it on record that while the whole country was asked to prepare and follow the strict rules of fighting corona pandemic, stay home and stay safe, while the whole India, all important agencies were supposed to concentrate on corona pandemic, I think one particular agency, particularly the law and order mechanism, particularly Delhi police, they went berserk. They went berserk and made arrests. The modus operandi of these arrests remind you of one of the most brazen manner in which state can operate. Students who were protesters, no crime. Almost all of us participated in anti-CAA protest. Almost all who are here as part of the panel. We were simply wanting to restore retrieve our constitution so that we can be proud of the fact that we have a preamble, and which is inclusive preamble. Now students all over India protested. Now what is very dark, in the dark shadows of the pandemic, what the Delhi police said, and it did, it called students, protesters, activists for discussion, subsequently made arrests. Initially, the arrests were on different clauses. Suddenly, they were almost blanket. They were put under UAPA. We all know courts are not functioning. There is no normal functioning. I have myself in the court premise on 3 and 4 occasions, and I have realized that this is nothing but to give a different kind of narrative. For instance, linking anti-CAA protest for Delhi violence. Only certain set of FIRs are being followed. All other sets of FIRs are being neglected. Now, neglected for the reason that they want a particular narrative to be put in the public domain. That जिन लोगों ने CAA के खिलाफ आंदोलन किया, शांतिपूर्ण आंदोलन किया, यही लोग दिल्ली में अशांति और हिंसा के लिए जिम्मेवार हैं. The idea of this press conference is that we'll all speak our mind in 2-3 minutes, share our concerns, and then we'll allow the press friends, media के जो साथी हैं, वो कुछ सवाल जवाब कर पाए. It's an occasion to have a greater sense of solidarity. All parliamentarians with a common solidarity clause, we need to put our acts together. Send a message to those students, activists, whether from Pinjarator or any other organization, that in your fight, which was a constitutional fight, which is your right, if you undergo these kind of brazen police behavior, we are with you. We'll not allow the lives to be wasted, the lives to be put under a very different kind of narrative, which is unacceptable to us. Nadeem, these are my initial remarks. I would want everybody to speak for 2-3 minutes, and then we take questions from the media. Is that all right with you and all other friends? जैसे कोविड-19 को लेकर के हम लोग लगातार नदीम जी से और हम तमाम अपोजिशन के मेंबर्स भी हम बात करते रहे. कोविड-19 में ये इनका एक मॉडस ऑपरेंडाई निकल करके आया, क्योंकि ये जो हमारे स्टूडेंट्स के अरेस्ट हुई हैं, ये आइडेंटिटी बेस्ड अरेस्ट, कोई मुगालते में ना रहे. बाकी दलितों के साथ भी उत्पीड़न हो रहा है, प्रवासी मजदूर के साथ हो रहा है, लेकिन ये सारे अरेस्ट पहचान के आधार पर हो गए हैं. मतलब सब्जुगेशन हो रहा है, ब्रूटलाइजेशन हो रहा है. कोविड-19 की वजह से जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अवरुद्ध है. मैंने अपना उदाहरण दिया, मैं 3 दिन गया कोर्ट में, कोई हियरिंग नहीं होती है, पुलिस कस्टडी मांगती है, मिल जाता है. और राजा साहब ने ठीक कहा कि ये सीधे टॉप से आ रहा है, जो कि नीचे वाले ऑफिसर कहते भी हैं. तो अब ये 2 लड़ाई का रास्ता खुलता है. एक है लीगल बैटल जो लड़ा जाएगा, और एक है पॉलिटिकल बैटल. अपोजिशन
पूरी दुनिया में ओवरवेल्म थी। मैं बताऊं, एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ, कोरोना कंसेंसस। अरे अभी क्रिटिसाइज मत करो, सरकार की आलोचना मत करो, हम बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो अपोजिशन की वॉइस थी, जो उनका मंतव्य था, इसकी जो संजीदगी थी, इससे हमारे रूलिंग पार्टी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अभी बीते दिनों राजा साहब इत्तेफाक रखेंगे, 22 अपोजिशन पार्टी की बैठक हुई थी। मैंने खुद इस इश्यू को रेज किया था, क्योंकि डिमांड इकोनॉमिक इश्यूज पे आ रही थी, इसको जोड़ा नहीं गया, लेकिन इस पर चर्चा हुई है। और एक बार आखिरी चीज मैं कहूं, ये एक टेस्टिंग टाइम है। मुझे खुद भी दोहरा चरित्र अद्भुत लगता है। जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के बाद इतने सारे लोगों ने आप प्रतिक्रिया दी है पूरे हिंदुस्तान में, और हमारे यहाँ बल्कि उसी तरह की चीजें बीते महीनों में हो रही है। तो शायद ये चर्निंग है। मुझे लगता है कि इस तरह के संवाद से रास्ता निकलेगा। मैं ऑप्टिमिस्ट बहुत नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि अपोजिशन की भी होगी, सिविल सोसाइटी भी साथ आएंगे, और ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई भी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई में मैं समझता हूं कि हम सब एक दूसरे का साथ दे करके लड़ेंगे और कामयाब होंगे। कि क्या लीगल टीम किस तरह की सपोर्ट, वो मैं समझता हूं एक एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे है। अभी भी हम में से जो लोग कर रहे हैं इंडिविजुअली कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शायद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक कलेक्टिव विजडम भी प्रिवेल करेगा। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 300-250 जो दिल्ली में अरेस्ट हुए हैं या देश में अलग अलग जहां हजारों की संख्या में अरेस्ट हुए हैं, ये यहीं खत्म नहीं होगी। और मैं समझ रहा हूं कि हम सबको एक थोड़ा हैंड होल्डिंग भी और ज्यादा करना होगा। कई दफा तुम्हारी कमीज मेरी कमीज की वजह से भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ नहीं आ पाती हैं, और यहाँ तो ये वक्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, सिविल सोसाइटी को और लार्जर पब्लिक को एक साथ आने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा शुरुआती में, और मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि आइडेंटिटी इटसेल्फ हैज बिकम अ रीजन फॉर ब्रूटलाइजेशन, और उसमें एक नैरेटिव परोसा जा रहा है। हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि बहुत प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तब जबकि आपको दिल्ली पुलिस के अंदर से ही बात आती है कि सारे इंस्ट्रक्शन हमें टॉप से मिल रहे हैं। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि इस तरह की हमारी कोशिशें और बेहतर होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि एक और चीज जो हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस मौके को, ये जो हालात हो रहे हैं, इसमें कई दफा मेरे अंदर भी एक मायूसी आ जाती है। वो मायूसी नहीं आने देनी है, क्योंकि वो मायूसी इट डजंट सर्व एनी पर्पस। मायूसी की बहुत वजह है, मैं जानता हूं, बहुत मुश्किल है हम में से अधिकांश लोगों के लिए कह देना। और दूसरी तरफ जिन लोगों को इस पहचान के साथ रोजमर्रा की जिंदगी जीने पड़ती है, इन चीजों के साथ इस तरह के हादसों से डील करना पड़ता है, वो एक मुश्किल क्षण होता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि इट वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। नदीम साहब, आपका, हमारे तमाम को पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर गलती से किसी साथी का सवाल छूट गया हो तो हम इस वर्चुअल मोड में फिर से मिलेंगे, और तब तक कुछ डेवलपमेंट भी होगा। हम भी कोशिश करेंगे कि अपोजिशन की तरफ से एक साउंड रॉबस्ट वॉइस जाए, ताकि कम से कम सत्ता को, रूलिंग रेजिम को ये लगे कि कोरोना आप सब कुछ छुपा नहीं सकते हैं। थिंग्स विल अनकवर देमसेल्व्स। थैंक यू नदीम साहब। दिल्ली पुलिस का ये अमानवीय चेहरा जो सामने आया, एक तरफ जब देश कोविड-19 से लड़ रहा था, दूसरी तरफ ऐसे आंदोलनकारियों को उन्होंने इस देश के संविधान की मूल रचना की रक्षा करने का काम किया, उन पर इस तरीके का जुल्म और ज्यादती और इस तरीके के फर्जी मुकदमे मैं कहूंगा। और शायद यही वजह थी जब लोकसभा में मैं पहले सेशन की, जब ये यूएपीए का अमेंडमेंट बिल आया तो विरोध किया था और एग्जाम्पल दिया था कि किस तरीके से ऐसे मिसयूज होता है। और अमरोहा में भी ऐसा ही हुआ था।
2018-19 के 18 के दिसंबर 19 की जनवरी में कि वहां को उठाया और क्लेम किया कि साहब जो ट्रैक्टर का जैक और वो बनाने वाले लोग उससे रॉकेट लॉन्चर बना रहे थे और उनको उठा करके बंद कर दिया। बाद में कोर्ट ने जो है उनको रिलीज किया। तरीके का देश की राजधानी में खासतौर से जो पीसफुल, और मैंने बात को कहता हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद ही आजादी के आंदोलन से डली थी और महात्मा गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था और वहां के पूर्व छात्रों ने जिस तरीके की जिम्मेदारी का निर्वहन किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो देश के सामने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया, सरकार ये लेकर आई, वो संविधान की मूल रचना के खिलाफ वो एक्ट था। उसके खिलाफ आंदोलन करने का काम उन छात्र छात्राओं ने किया और उनके खिलाफ सरकार जो है इस तरीके की दुर्भावना रखते हुए बजाय कि उन लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती, दिल्ली पुलिस इंट्रोस्पेक्ट करती कि लाइब्रेरी के अंदर घुस करके जिस तरीके की फुटेज आई, उस फुटेज को आने के बाद सामने देश और दुनिया के सामने आ गया कि किस तरीके के जुल्म और ज्यादती लाइब्रेरी के अंदर छात्र छात्राओं पर हुई। क्या इसलिए दिल्ली पुलिस ने यह काम किया कि उन आंदोलनकारी छात्र छात्राओं को उठा करके बंद कर दिया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के उस इनह्यूमन एक्ट को जो है उजागर करने का काम किया था कि उनको पहले ही डिफेंसिव पोजीशन पे ले आए? देखिए, ये देश के लिए, देश की जो फ्रीडम है आम आदमी की, उस पर ये ये नहीं, बाद में खा लेता हूँ। इसका हम एज अ पार्लियामेंट और सारे जितने हैं इस देश मनपसंद और जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाले लोग हैं, वो इसकी मजम्मत ही नहीं करते। तो ये जुल्म और ज्यादती छात्र छात्राओं के साथ हो रही है, उन आंदोलनकारियों के साथ हो रही है, उनकी सॉलिडेरिटी में हम केवल खड़े ही नहीं होंगे, बल्कि ये कोविड-19 के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये जरा थोड़े खत्म अब होने पर आ रहे हैं, इसको हम जॉइंटली इसके खिलाफ हम जो है सारे पार्लियामेंटेरियंस जो यहाँ हैं और दूसरे लोग मिलकर के उनके बचाव में, उनकी रक्षा में हम लोग उतरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकली जो है, जो प्रेजेंट डिस्पेंसिएशन है, वो आपदा को अवसर में अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए बदलने में कामयाब रहा है कि जो उनको एजेंडा अपना इम्प्लीमेंट करना था उसमें वो कामयाब रहे। और कोविड-19 का बहाना लेते हुए, मैं जानता हूं कि मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक क्रिमिनल जो है पुलिस की वर्दी पहन करके कहीं हमला कर देता है और जब मैं बड़े पुलिस अधिकारी से बात करता हूं तो वो कहता है कि साहब इसको 107-51 में मुकदमा दर्ज करके छोड़ देंगे क्योंकि हमारे ऊपर डायरेक्शंस हैं जुडिशियरी के, डिस्ट्रिक्ट जज इसको जेल ही नहीं भेजेंगे। तो मतलब यूपी में ऐसा हो रहा है और दिल्ली में जो एक्टिविस्ट थे जिनको झूठे मुकदमों में फंसा के उनको लगातार जेल भेजा जा रहा है। तो ये तो पूरा सिस्टम जो है, पूरे सिस्टम ने सोच समझ के, जो आपका सवाल है मुमताज साहब, वो बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने जो है उसका इस मजबूरी का फायदा उठाया है, जबकि देश की आवाम, अपोजिशन पार्टीज, इंटेलेक्चुअल्स इस काम में रहे कि पहले किसी तरीके से कोविड-19 से लड़ा जाए, उसके बाद हम अपने पॉलिटिकल सवालों को उठाएंगे। लेकिन सरकार जो है कोविड-19 से फाइट करने के बहाने जो है ये सारे काम करती रही और मजलूमों को जेल में भेजती रही।